बॉयज ब्रेक पे जाने से पहले हम रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के हवाले से जो बात कर रहे थे, बट his ODI captaincy record, let's talk about that. We just take a look at that record. Look at that record. 76% close to. Look at that wins percentage over there. And just it's followed by Virat Kohli, MS Dhoni, I mean, for Team India. But look at how where he's Look at the win percentage, almost 76%. Sirf 12 I think the biggest number is MS Dhoni. 58. Look at the number of games. When you maintain this 58.21 in number of matches, that's a serious record. Yeah, because वो मैच किए धोनी ने कप्तान के हमारे मुल्क में होता है 36 मैच करके उन्हें सैक कर देना। His leadership style, Jatupaji, what makes him? Because he only has 12 losses there. So, obviously credit that he has a great bunch of guys around him. That great. He might not be in a very good form right now. In a way, 200 तो नहीं कह सकते, but उसका एक दिन आना है. Could be today. Could be. Yeah. No, as a batsman, I think there's no doubt. I think the advantage that he has over a lot of those lists that you see is as a captain. I mean, he will tell you better because they've led their countries much more. But I feel as a captain, your sole first thing that you must have is to understand what your players feel. And in a team, there will always be seniors, juniors, guys who are coming in and out of that side. So I think the biggest advantage that he's had and he's made the difference to this Indian side is because he had spent a lot of years before he actually got to lead the side. Right. He understood each player in that side much better. He was one when he came into the side, he was struggling. ये IPL में भी तो कप्तान था मुंबई का. नहीं, so वो उस पे आ रहा हूँ. But मैं कह रहा हूँ ये इसकी इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी जो है, he's managed to get the fringe players feel comfortable or make them feel comfortable. So that is the start, and he gets that respect and camaraderie. He is not led like a lot of captains lead, staying away from the, there are different styles of captaincy. He is a captain who, blends into the team, and he's one of the boys and he leads them that way. और वो बॉम्बे का एक बड़ा लफ्ज है जो यूज करते हैं, वो जो रोहित देख के याद आता है, बिंदास. मैं तेरे को बताता हूँ. He is relaxed, एक और एडवांटेज जो रोहित को भी है और इंडियन टीम को भी है ना, वो है कि लीडरशिप का. लीडरशिप सिर्फ कप्तानी से नहीं आती है. लीडरशिप आपके जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक लीडरशिप लेके आते हैं. एंड आई थिंक विराट का होना एक बहुत बड़ा प्लस है. ठीक है, वो कप्तान नहीं है, उसने कप्तानी कर देखी है, उसको कप्तानी का बिल्कुल पूरा आइडिया है. लेकिन जो वो लेके आता है ना, विराट लेके आता है ओके फिटनेस में वो लीडर है. टैक्टिक्स में प्रॉब्ली रोहित है कि किसको कब बॉलिंग करानी है, किसको क्या कराना है, बट फिटनेस का वो लीड करता है. कीपर बिहाइंड द स्टंप रोहित है, वो अपना क्या नाम है, KL Rahul है, and he leads from behind. So I think it's not only Rohit, of course, ट्रॉफीज तो वही उठाते हैं, लेकिन जो उसका आपका जो बंच होता है ना, जो लीडर्स का बंच होता है, 3-4 होते हैं, इनर सर्कल जिसे that makes a massive difference. एज अ कैप्टन आप जाते हो एडवाइस लेने, और आपने विराट की फिटनेस की हम इतनी बात कर रहे हैं, उसकी रीजन है क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही रियली इज फिनोमिनल. अगर उसने 227 रन किए अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, 227 रन किए, और उसमें से 157 इज जस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स. ही डिडंट हिट अ सिक्स, एंड दैट शोज. और कुछ मैचों में उसने पहले 50 ओवर फील्डिंग भी की है, और फील्डिंग में वो छुपता नहीं है. Yeah, look at that. That's what you were saying. Most runs by running. Kohli is right on top. 157. Root there with the 137. Shreyas there 121. Latham 121 and Rachin Ravindra. There's only one British player. बाकी 2 Indian है और 2 South African है. They both teams are in the final. Yeah. Just not South African, though New Zealand. नहीं, वो actually New Zealand. Absolutely. And then there is that, the Virat act on your screens right now. I mean, this is just phenomenal, Nikhil. Incredible. और जैसे जैसे ऑफ कोर्स उनका करियर बढ़ता चला गया, स्पिन के खिलाफ स्वीप खेलना स्टार्ट किया, और वो सिंगल्स की जो बात हो रही थी 150 रन ना, मिडिल ओवर्स में आप सिंगल निकालते रहते हैं, स्कोरबोर्ड चलता रहता है ना, तो स्पिनर्स को और मीडियम पेसर को जो बॉलर बॉल डाल रहा है ना, बड़ा परेशान करता है, क्योंकि 3-4 सिंगल आते रहते हैं, तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर वो रहता ही नहीं है. जिस तरीके से पिछले मैच में भी आके वो रन बना रहे हैं, सो इनक्रेडिबल. आई थिंक ही इज समबडी हु रीड्स द गेम रियली वेल. और जब चौका मारने की बारी आती है, ही नोज कि कौन से पॉकेट्स में मेरे लिए रिस्क फ्री चौके. सो ही वैल्यूज हिज विकेट. वो कभी रिस्क लेते हुए नहीं देखेंगे. लेकिन एक चीज़
डोंट यू थिंक, और जाट से भी, कि डोंट यू थिंक कि इंडिया जो टॉप 2 बैटर्स हैं वो अग्रेसिव हैं, नो डाउट अबाउट दैट, Right. लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बॉल्स नहीं मिलते हैं कि जहाँ पे आप उसको खुली हिट मार लो, क्योंकि फाइनल्स में हर एक सेट पैटर्न होता है जिस पे बॉल करते हैं। जब आपको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इंडिया फंस जाती है, एंड देन दे लुक फॉर दोज बिग शॉट, इट बिकम्स रिस्की बिजनेस देन। डोंट यू थिंक दे शुड जस्ट लुक टू रोटेट द स्ट्राइक रादर देन जस्ट यार 4 डॉट हो गया, मुझे मारनी shot? भाई बड़ा ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते समय कि नंबर ऑफ डॉट बॉल्स कम हो। अंत में ऐसे ही। 300 गेंदों का फॉर्मेट है, कम से कम डॉट बॉल जो टीमें खेलती है वो जीतती है। और अंत में किसी बैट्समैन को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाली टीम में मेरे 5 बॉलर है, वो 2 ओवर या 3 ओवर का स्पेल के बाद दूसरा बॉलर भी तो आएगा, तो किसी ना किसी मैंने बॉलर को तो किसको टारगेट टारगेट करना है। ये विराट का चेस, हम चेस मास्टर कहते हैं। विल शेयर दिस स्टैट विद यू इन चेजिंग जडुपाजी। टेक अ लुक एट दिस स्टैट। सो ओवरऑल, सो जस्ट लुक एट दैट। ओवरऑल the ICC ODI tournament runs, look at that, he's just behind Sachin now. Very close to him. I mean, this is probably one number that he will catch up very soon, unless वो आप बात कर रहे थे कि वो कितना खेलना चाहते हैं, बट 200 रन पीछे ही है और आज तो मुश्किल है, लेकिन ये एक नंबर तो जरूर वो पहुंचेंगे। और ये सारे जो आप देख रहे हैं इस लिस्ट में देखें, ये सारे ऊपर खेलने वाले these are players who bat at open 3 और at the most पॉन्टिंग भी बहुत कम 4-5 पहले खेला था, 3 पे ही खेला था। So these are the accumulators of your side. These are people who you play around. जो रूट इंग्लैंड के लिए ले लें अपना संगाकारा, विलियमसन जो है अभी न्यूजीलैंड आज की बात करें तो इनका एक अलग ही काम होता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टैट्स पे, हम तो यहाँ नहीं जाते, बट जनरली कोचेस भी बहुत आजकल देखते हैं और कंपैरिजन होती है स्टैट्स से लेके, बट ये रोल ही अलग है। इट्स लाइक होस्ट का रोल अलग है, गेस्ट का रोल अलग है। तो ये जो स्टैट है, रन सब बैट्समैन को एक साथ दिए जाते हैं, ये स्किल होती है जो अक्यूमुलेटर्स होते हैं, वो अगर आपकी टीम का हो सॉलिड, Right. फिर आपके इर्द गिर्द ना बाकी लोग और खुल के खेल सकते हैं, फिर वो एक्सप्लोसिवली खेल सकते हैं। तो ये दीज गाइज डिसाइड। और उनके ये जो नाम देखे हैं, एक और चीज आप इनके साथ देखेंगे, संगाकारा जब खेला है श्रीलंका डिड वेल, पॉन्टिंग जब खेला है ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही अच्छा करती है। तो आपकी टीम अच्छा करने का भी ये एक गेज है देखने लायक कि जो आपका जो 3 नंबर का प्लेयर है वो कितने रन बनाता है। इनकी स्ट्राइक रेट इनकी टीम में अपने जमाने में बेस्ट नहीं होगी। पॉन्टिंग को आप ले लें तो स्ट्राइक रेट दूसरे प्लेयरों की बेहतर होगी। तेंदुलकर एक रेयर कमोडिटी होगी उसमें, क्योंकि वो एक तो वैसे ही रहे। बाकी वो चारों जो लिस्ट में है ना, उनकी स्ट्राइक रेट उनकी बैटिंग लाइनअप में सबसे कम होगी, लेकिन उनकी एवरेज और उनके रन्स सबसे ज्यादा होंगे और उनकी टीम ने उस वक्त सबसे अच्छा किया।